Shall we pray? Father in heaven, thank you so much for your loving kindness. Thank you, Father, for another privilege to study your words together as a family. Thank you, Father, for the blessing that this study will be led by your Spirit and according to your will. Father in heaven, may the divine help attend this study. We plead, God, may the author himself be our teacher so that we could understand much better and much clearly than we have understood this subject thus far. We plead, God, may the truth be lifted high. May everything as it is in your words be lifted higher and higher. And may we be inspired, and may we our faith be reignited, and may we be revived and transformed for your glory and for your second coming. Father, we commit the internet into your hands. May you hold it together, that as we are connected in this session of study, there be nothing that will keep us from hearing your word clearly. We pray, Lord, keep us from every distraction and keep us from everything that will try to stop us or keep us from hearing your words so important. Thank you, Father, for this privilege to study. Thank you, Lord, for you have given us this freedom to have these online Bible studies. Thank you, and we praise you for you're going to teach us. In Jesus' name we pray. Amen. We want to thank God for another privilege to be allowed to come together for the study of His holy words. हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम सभी एक साथ आ सके, कि हम इस परमेश्वर के पवित्र वचन का एक साथ हम अध्ययन कर सकते हैं. And I hope and pray and I believe that you all are doing well by God's grace. और मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और परमेश्वर आप सबके साथ है. And I believe that the studies that we are going through, they have been a blessing to you and to your friends and to your families. और मैं विश्वास यह भी करता हूँ कि जो पढ़ाई में हम हैं वो आपके लिए, आपके परिवार और आपके दोस्तों के लिए एक आशीष का कारण रहा हो. And there is more, and we are going to study more on the subject of millennium and the end of sin. इस विषय में जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसपे बहुत से और बातें हैं और उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. और ये विषय जो कि हम हजार वर्ष और पाप का अंत को देख रहे हैं उसको हम जो है गहराई से हम देखना चाहेंगे. And in case if this is your first time that you're joining with us in this study, then I would highly recommend you to please visit Live for the Lord YouTube channel. There, the videos have been uploaded so that you could go and study them and so that you could be paced with the study that we are going to have today and the days to come. यदि ये आपका पहला दिन है हमारे साथ पढ़ाई में जुड़े, या आपने कोई पढ़ाई को आपने मिस किया हो, छोड़ दिया हो किसी कारणवश, तो मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप लिव फॉर द लॉर्ड यूट्यूब चैनल में जाइए और वहां पर जो है ये पढ़ाइयों का वीडियो जो है अपलोड किया गया है. आप जाके वहां पढ़िए ताकि आगे के पढ़ाई जो है आपको बेहतरी से और समझ आ सके. And also, I would want to request the team Live for the Lord to please drop the YouTube channel link in the chat box. और मैं Live for the Lord टीम को मैं विनती करना चाहूंगा कि कृपया करके जो आपका YouTube चैनल है उसका लिंक जो है चैट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा. We'll take a super quick summary of what we have studied thus far. हम जो है अब एक बहुत तेजी से जिन चीजों को हमने अब तक पढ़ा है उनको सारांश में हम रखना चाहेंगे. The first day we saw the word millennium. पहला दिन हमने देखा उस शब्द millennium को. And we saw that millennium comes from two words, milli and annium. Milli means thousand, annium means year.
हमने देखा कि मिलीनियम जो है वो दो शब्दों से आता है। पहला है मिली, जिसका मतलब हजार, एनियम मतलब साल। तो हम देखते हैं ये हजार वर्ष होते हैं। और ये जो मिलीनियम जो शब्द है ये लातूनी भाषा से आता है। द वर्ड मिलीनियम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। And after that, we also went through, we had a summary of the things that were happening. फिर उसके बाद हमने जो है कुछ सरहांश पे हमने जो है हजार वर्ष से जुड़ी हुई उन बातों को देखा. Then after that, we took the review of the book of Revelation. And the purpose to do that was to get a overview, to get a picture of what is really happening or what is leading up to the millennium. उसके बाद हमने जो है प्रकाशित वाक्य को किताब को हमने ऊपरी स्तर से देखा ताकि ये हम समझ सके कि कौन से घटनाएं हो रही हैं और किस रीति से जो है हम हजार वर्ष तक पहुंच रहे हैं. एंड वी रियलाइज्ड दैट द जर्नी टू द मिलेनियम is not easy, but praise God, though it is not easy, God is with us through it all and he will carry us through. हमने देखा उस पढ़ाई के दौरान कि ये जो हजार वर्ष तक का सफर है वो उतना आसान नहीं होने वाला है, पर परमेश्वर की महिमा हो क्योंकि वो हमारे साथ रहेंगे और वो हमें इस कठिन दौर में वो हमारे हाथ को थामते हुए जो है हर एक कठिनाई से हमें जीत दिलाएंगे. Yesterday, then we were taking a look at the trees that are really closely connected with millennium. और कल के दिन जो है हम उन तीन चीजों को देख रहे थे जो कि हजार वर्ष से जो है बहुत करीबी रूप से जुड़ी हुई है. And if you were with us, then we saw few things. We saw the three comings of Christ. We saw the three phases in millennium, and we also saw the three resurrection. यदि आप हमारे साथ थे, तो हमने देखा तीन यीशु मसीह के आगमन, हमने देखा तीन भाग हजार वर्ष के, और हमने जो है तीन पुनर्स्थान को भी देखा. And we saw how the first coming of Jesus was when he came as a babe. The second coming will be very soon, and we are approaching the second coming. And the third coming is after the millennium. हमने देखा कि यीशु मसीह का पहला आगमन जब था वो एक बालक के रूप में आए थे. दूसरा आगमन जो कि बहुत करीब है, जब हम घटनाओं को देखते हैं इस दुनिया में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत करीब है. फिर तीसरा आगमन है जो कि हजार वर्षों के बाद है. And we believe that the second coming of Jesus is real and is very close. Rather, when we hear about the events that are happening in the world, rather those events are not just events, but those are the footsteps of Jesus's second coming. हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन सत्य है और वो जरूर पूरा होगा. और जो घटनाओं के विषय में हम दुनिया भर में सुनते हैं और जो घटनाएं हो रहे हैं वो वाकई में घटनाएं नहीं है, पर वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन जो है, दूसरे आगमन के वो कदम है. Then we saw the three phases in millennium. We saw three phases in millennium. The first was pre-millennium. The second was through millennium, and third was post-millennium. And in the pre-millennium, we see that is the time before the millennium, and through millennium is through the 1,000 years, and post-millennium is after the 1,000 years. हम फिर देख रहे थे तीन भाग जो कि वो हजार वर्षों में है. सबसे पहला जो है हजार वर्ष से पहले का दौरान, उसके बाद हजार वर्ष के दौरान, फिर हजार वर्ष के बाद. और इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि किस जगह जो है हजार वर्ष की शुरुआत हो रही है और कब तक हजार वर्ष होगा और हजार वर्ष के बाद क्या होगा, इनका जो है जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. And to understand these three different phases, it's very important when the 1,000 years is happening and what is happening through the 1,000 year and what will happen
after the 1,000 years, it becomes very crucial. And then we saw the three resurrection: the first resurrection, special resurrection and second resurrection. उसके बाद हमने जो है तीन पुनरुत्थान को देखा। सबसे पहला जो है पहला पुनरुत्थान, फिर खास पुनरुत्थान और फिर दूसरा पुनरुत्थान. And today we are going to look at the few verses, and after this we are going to look at the three books of record. आज जो है हम कुछ आयतों को देखेंगे और उसके बाद जो है हम उन तीन किताबों को देखेंगे जिस पर जो है हर एक के जीवन का जो है अभिलेख किया जा रहा है. तो हम उन चीजों को एक एक करके जो है हम देखने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने पेन और नोट्स के साथ तैयार है, क्योंकि इन बातों को लिख कर रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है. And today we are going to look at a few more things connected with the resurrection and the books. And I believe that you are ready with your pen and paper so that you could take the notes of everything that we are going to study. So the first resurrection, if you're looking for the Bible reference, the first resurrection, if you're looking for the Bible reference, then you can turn with me to John chapter 5, verse 28 through 29. John chapter 5, verse 28 through 29. Here it says, "Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice." यदि आप बाइबल की आयत देख रहे हैं पहला पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ, तो आप मेरे साथ आइए प्रकाशित वाक्य यूहन्ना यूहन्ना 5 का 28 और 29. यहाँ इस प्रकार लिखता है 28, "इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे." 29 it says, "And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation." 29 में इस प्रकार लिखता है, "जिन्होंने भलाई की है वे जीवन जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे." So we see here the scripture is making it super clear that the ones, those those who are, rather we say, those who are in relationship with Christ, they will resurrect first. And the ones, those who are not in relationship with Christ, they will not be the one to resurrect first. हम यहाँ देखते हैं वचन स्पष्ट करता है कि जिनका परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रिश्ता है वे पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, और जिन लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं रखा है वो उस दूसरे पुनरुत्थान के भागी होंगे. आइए एक और आयत देखें. Come, we'll see one more verse, that is 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. आइए हम एक और आयत देखेंगे जो कि है पहला तिस्सलुनियों उसका 4 का 16 और 17. "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." Then 17 says, "Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord." हिंदी में इस प्रकार लिखता है, "क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे,
कि कि हवा में परमेश्वर से मिले और इस रीति से हम सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे। I believe yesterday, Brother Chunu has asked the question about how things would be when we resurrect, and I think the best answer to that question is 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. The righteous dead, they will resurrect at the sound of the trumpet, and the living righteous, they will be transformed in the twinkling of an eye. कल भाई चुनू ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि कैसा कैसा जो है वो समा होने वाला है, कैसे जो है चीजें होने वाली है, और उसका बेहतरीन जवाब जो है एक तिस्सलुनी उसका 4 का 16 और 17 है, क्योंकि यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि जो जीवित धर्मी होंगे वे पल भर में जो है वो बदल जाएंगे, और जो मृत धर्मी है वे वो तूरी की आवाज को सुनकर वे जी उठेंगे, और हम सभी जो है हम बादलों में परमेश्वर यीशु मसीह से मिलेंगे। Then we'll read one more verse, that is Revelation chapter 20 verse 4 and 4 through 6। आइए हम एक और आयत को पढ़ेंगे जो कि प्रकाशित वाक्या उसका 20 का 4 से लेकर 6 तक। यहाँ वचन इस प्रकार लिखता है, And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. 5. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. 6. Blessed and holy is he that had part in the first resurrection. On such the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. The ones those who are following, जो भाई बहन जो हिंदी बाइबल को फॉलो कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है साथ साथ इन आयतों को पढ़ रहे हैं। समय को नजर में रखते हुए जो है मैं हिंदी में अब से जो है नहीं पढ़ूंगा, तो आप कृपया करके आप हिंदी में जो है आयतों को आप देखते जाइएगा। तो we see that Bible makes it very clear that there is a first resurrection of the righteous. बाइबल जो है बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि एक पहला जो है पुनरुत्थान है। बाइबल इस चीज को बिल्कुल जो है बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। एंड इफ यू वांट टू सी फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ सिस्टर एलन व्हाइट, देन in the book of great controversy, page 644, यदि आप बहन एलन व्हाइट की लिखी हुई बातों से आप देखना चाहते हैं, तो आप इसको जो है महासंघर्ष पुस्तक है, और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। उस किताब महासंघर्ष पे बहन एलन व्हाइट जो है इस पहले पुनरुत्थान के विषय में लिखती है। अंग्रेजी में इस प्रकार कहता है, amid the railing of the earth, the flash of lightning and the roar of thunder, the voice of the Son of God calls for the sleeping saints. He looks upon the graves of the righteous, then lifting his hands to heaven, he cries, Awake, 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 ye that sleep in the dust, and arise. बहन एलन व्हाइट इस पुस्तक महासंघर्ष उसका पन्ना जो है 400 644, वहां पर इस प्रकार कहती है कि जब ये पृथ्वी झूल रहा होगा और बिजली कड़क रही होगी और जो गर्जन जो है बिल्कुल सुनाई देगी, और इस दौरान कहती है कि परमेश्वर का पुत्र का आवाज जो है उन सोते हुए धर्मियों को पुकारेगा, और परमेश्वर यीशु मसीह जो है जो धर्मी उनके कब्रों की ओर देखेंगे, और उनके कब्रों की ओर देखते हुए वो अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और चिल्लाकर कहेंगे, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, जो इस भूमि पर इस मट्टी पर लेटे हुए हैं, उठ जाओ। Then in page 645, C continues, all arise with the freshness and vigor of eternal youth.
The living righteous are changed in a moment, in the twinkling of an eye. उसके आगे पन्ने में बहन एलन व्हाइट लिखती है कि हर एक जो पुनर्स्थापित किया जाएगा वो एक नए ताकत के साथ वो पुनर्स्थापित किया जाएगा। जैसे एक नौजवानों पर एक ताकत होता है, जोश होता है, उसके साथ जो है पुनर्स्थापित किए जाएंगे। और जो जीवित धर्मी होंगे वो पल भर में आंख मूंदने के से आंख मूंदते हैं और खोलते हैं, उस पल में ही, आंख मूंदने के पल में ही जो है वो जो है धर्मी बदले जाएंगे। देन सी further goes on, blessed and only is he that had part in the first resurrection, on such the second death had no power. बहन एलन व्हाइट आगे कहती है कि धन्य और आशीषित है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हुए हैं। And my friends, pray that you be the one who will be taking part in the first resurrection। और अजीजों प्रार्थना कीजिए कि आप जो है उस पहले पुनरुत्थान के भागीदार होंगे। And yesterday we saw that the first resurrection happens at Christ's second coming। कल हमने देखा कि जो पहला पुनरुत्थान है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में होगा, मतलब 1000 वर्ष से पहले। And after this, we were studying about the special resurrection. And now we are going to look at some Bible references, also references from Sister Ellen White. और इसके बाद हम देख रहे थे उसका पुनर्स्थान के विषय में, और कुछ हम बाइबल की आयतों को देखेंगे इस विषय में देखने के लिए। तो आइए मेरे साथ आइएगा दानियल उसका 12 का 2। प्लीज कम विथ मी टू द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 2। Here the scripture says, 12:2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to same and everlasting content। I would want to read also in Hindi। Here it says, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। Here we see that a resurrection is happening, and it speaks about the resurrection that will result in eternal life and the resurrection that will result in everlasting content। और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पुनर्स्थान का वचन जिक्र कर रहा है, और यहाँ इस पुनर्स्थान जो हो रहे हैं उनका दो अलग परिणाम है। पहला जो है हमेशा का जीवन प्राप्त हो रहा है, और दूसरा में हम देख रहे हैं कि सदा के लिए घिनौने ठहराए जाने के लिए जो है ये पुनर्स्थान हो रहा है। And we know that as we have read already, the first resurrection, it is happening of the righteous, and the first resurrection, on in this resurrection there is no place for the unrighteous people। हमने पढ़ा कि जो पहला पुनरुत्थान है उस वो किनका हो रहा है, जो लोग धर्मी लोग हैं। मतलब उस पहले पुनरुत्थान में जो है अधर्मियों का कोई कोई चांस ही नहीं है, कह सकते हैं कि उनका उसमें पुनरुत्थान हो। तो ये स्पष्ट हो जाता है ये कि ये एक खास तरह का पुनरुत्थान है जहां धर्मियों का भी पुनरुत्थान किया जा रहा है और अधर्मियों का भी एक साथ पुनरुत्थान किया जा रहा है। So we see here very clearly that the resurrection of the righteous is happening, at the same time wicked is happening, and it is indeed, therefore we can safely conclude that this is a special resurrection। Let's read one more verse that is found in the book of Revelation chapter 1 verse 7। आइए हम एक और आयत को इस चीज को देखने के लिए हम पढ़ेंगे, वो है प्रकाशित वाक्या उसका 1 का 7। Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindred of the earth shall wail because of him
even so come. हिंदी में इस प्रकार लिखता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। So we see here the scripture is telling us that the ones who pierced Christ, they will see him coming in the clouds, that is in his second coming. यहाँ वचन कहता है कि जिन्होंने यीशु मसीह को भेदा, जिन्होंने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था, वे लोग जो है यीशु मसीह को उसके दूसरे आगमन में देखेंगे। Now, as we were studying the first resurrection, we see that the first resurrection is happening at the second coming of Jesus Christ. जैसे हमने पढ़ा कि पहला पुनरुत्थान जो है यीशु मसीह के आगमन के समय जो है हो रहा है। जैसे यीशु मसीह आते हैं, तुरही फूकी जाती है, जो धर्मी मृत है वो कब्रों से जी उठकर आते हैं और जो धर्मी जीवित है वो पल भर में वो बदल जाते हैं। We saw that how at the coming of Jesus Christ and when the trumpet is sounded, the righteous dead, they come out of the grave, and the righteous living, they are changed in the twinkling of an eye. But here, Revelation 1:7 tells us the ones who pierced Christ, they will see him coming the second time. पर यहाँ प्रकाशित वाक्य 1 का 7 कह रहा है कि जिन्होंने यीशु मसीह को भेदा था वो उसे दूसरी बार आते हुए देखेंगे। एंड ऑल्सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड ऑन दैट, बिफोर द कमिंग ऑफ क्राइस्ट देयर विल बी द राइचियस लिविंग, दोज हु विल नॉट सी डेथ। Also there will be wicked living who will have not seen death until now. इससे पहले कि हम आगे जाए, ये चीज को भी और मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि यीशु मसीह के आगमन से पहले कुछ धर्मी जन भी जो है जीवित रहेंगे और इनमें से 1,44,000 जरूर होंगे। और इसके साथ साथ जो दुष्ट है, कुछ दुष्ट भी जो है उस समय जो है जीवित रहेंगे, जिन्होंने जो है अब तक मृत्यु को नहीं देखा है, जो कि यीशु मसीह के आने के उस चमक से, महिमा से वो लोग जो है क्या हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। सो we see here the scripture is telling us that the ones who pierced him, they will see him coming the second time. If that is what the scripture is telling, that simply means that their resurrection needs to happen before he comes in the clouds of heaven. वचन कहता है कि जिन्होंने उसे भेदा वे उसे बादलों में आते हुए देखेंगे, और यदि ये ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि उनका पुनरुत्थान यीशु मसीह के आगमन से कुछ समय पहले होगा, ताकि वे यीशु मसीह को बादलों में आता हुआ देखें। So we see here that there is a special resurrection. There is a special resurrection of the wicked. There is a special resurrection of the righteous. हम देखते हैं कि एक खास पुनरुत्थान भी है जहां पर कुछ दुष्टों का पुनरुत्थान किया जा रहा है और कुछ धर्मियों का पुनरुत्थान किया जा रहा है। And if you have a question, who are these wicked people and who are these righteous who are being resurrected in this special resurrection? यदि आपका ये सवाल है कि जो दुष्ट पुनर्स्थापित किए जा रहे हैं वो एक कौन है और जो धर्मी जिनको पुनर्स्थापित किया जा रहे हैं वो कौन है, तो इसका जो है जवाब हम पहले देख चुके हैं। We have seen the answer to that before. So the some wicked who are being resurrected are the ones, those who are the fiercest enemy of Christ and his church. जो दुष्ट जिनको पुनर्स्थापित किया जा रहा है यीशु मसीह के आगमन से पहले, वे हैं जो परमेश्वर के बहुत बड़े दुश्मन और विरोधी रहे हैं और उसके कलीसिया के भी। And concerning some righteous who will be resurrected in this special resurrection are those
those who died in faith in the third angel's message. और जो धर्मी है, जो लोग जो लोग जिलाए जाएंगे उस खास पुनरुत्थान में, वे लोग हैं जो लोग उस तीसरे स्वर्गदूत के संदेश पर विश्वास करते हुए वे जिनका मृत्यु हुआ है. So we see here that as there is first resurrection, there is also special resurrection. हम यहाँ देखते हैं कि जैसा पहला पुनरुत्थान है, उसी प्रकार से जो है ये खास पुनरुत्थान भी है. Sister White again writes in the book Great Controversy, page 637, graves are opened, and many of them that sleep in the dust of the earth awake, some to everlasting life. ये दानियल उसका 12 का 2, and some to same and everlasting contempt. Again, Daniel chapter 12 verse 2. बहन एलन वाइट महासंघर्ष पुस्तक पे कहती है 637 पे कि कब्रें खुल गई और बहुत से लोग जो भूमि पर सो रहे थे वे जी उठे, कुछ हमेशा के जीवन के लिए और कुछ हमेशा के लिए घिनौने ठहराए जाने के लिए. Further, she says, those who died in faith under the third angel's message come forth from the tomb glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept his law. बहन एलन वाइट कहती है कि जो लोग जो है तीसरे सरदूत का संदेश पर विश्वास करते हुए मरे, वे लोग जो है कब्रों से महिमा में शरीर के साथ निकलेंगे और वे लोग परमेश्वर के उस शांति के वाचा के शब्दों को सुनेंगे. So we see here that there is a special resurrection as well. हम यहाँ देखते हैं कि एक खास पुनरुत्थान भी यहाँ पर है. And this resurrection is happening just before the second coming of Jesus Christ. और ये पुनरुत्थान जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले हो रही है. With that, we come to the second resurrection. The second resurrection, and for that we will see some of the references. उसके साथ अब जो है हम दूसरे पुनरुत्थान में आते हैं और उसके लिए भी कुछ हम आयतों को हम देखेंगे. यूहन्ना उसका 5 उसका 28 और 29 जिसको हम देख चुके हैं, उसको भी आप जो है एक आयत के लिए आप लिख सकते हैं. Revelation, John chapter 5, verse 28 and 29. You can also write that as a reference for the second resurrection. With that, you can look to Revelation chapter 20, verse 5. उसके साथ जो है आप प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 5 जो है आप उसको भी लिख सकते हैं. We have seen these verses, but we want to revisit them again. हमने इन आयतों को देखा है पर हम इनको दोबारा जो है पढ़ना चाहेंगे. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. It speaks about the first resurrection. And we see here also, it says that the dead lived not again until the 1,000 years. हम यहाँ देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का 5 में कि जो मृत थे और जब तक ये 1,000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, यह तो पहला मृत्यु स्थान है, ये पुनर्स्थान है. So we see here it speaks about the dead, the wicked dead. They are not alive until the completion of the 1,000 years. हम यहाँ देखते हैं कि जो दुष्ट है वे 1,000 वर्ष जब तक नहीं पूरे हुए वे जो है क्या रहे, वे वो जो है जी नहीं उठे. वे जो है क्या थे, कब्रों पर ही थे, कब्रों में ही थे. So we see here that the second resurrection, it is happening at the expiration, at the end of the 1,000 years. हम यहाँ देखते हैं कि जो दूसरा पुनर्स्थान है वो 1,000 वर्ष या कहेंगे मिलीनियम के खत्म होने पर जो है वो जो है पुनर्स्थापित किए जाते हैं.
Let's see what Ellen White has to say on this. The book Great Controversy, page 662. At the close of the 1,000 years, the second resurrection will take place. Then the wicked will be raised from the dead. बहन एलन वाइट कहती है कि 1,000 वर्षों के खत्म हो जाने पर दूसरा पुनरुत्थान होगा। फिर जो है दुष्ट लोग कब्रों से उठेंगे। Sister White makes it super clear, and even the scriptures make it super clear that the second resurrection will happen after the 1,000 years are over. बहन एलन वाइट और परमेश्वर का वचन ये स्पष्ट करता है कि दूसरा पुनरुत्थान जो है 1,000 वर्षों के खत्म होने के बाद जो है वो होगा। We see it in the scriptures, and we see it in the spirit of in the writings of Ellen White, that there is a second resurrection. हम देखते हैं कि वचन स्पष्ट करता है, हम देखते हैं कि बहन एलन वाइट की लिखी हुई बातें स्पष्ट करते हैं कि एक दूसरा पुनरुत्थान भी है, जो कि दुष्टों का पुनरुत्थान है, जो कि 1,000 वर्षों के बाद जो है होने वाला है। And I believe that these three resurrections are very clear when they are happening, for who they are happening, and what will be their result. मैं विश्वास करता हूं कि ये तीन पुनरुत्थान जो है आप बिल्कुल उस वो आपके लिए स्पष्ट हो गया, कोई संकोच नहीं है, और वो किन के लिए हो रहा है, किस समय में हो रहा है, और उसका परिणाम क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए जो है स्पष्ट है। Now we see the last threes. We have been studying the threes, and now we are going to see the last threes. हम जो है तीन चीजों को देख रहे हैं जो कि अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई है, और हम जो देखने वाले हैं अब आखिरी तीन, जो कि है उस अभिलेख का पुस्तक। We have been seeing the threes, but now we are going to see the last threes, and that is the three books of record. And now we see that there are three books in which the records are written, and we can see their evidences in the scriptures and also in the writings of Sister Ellen White. हम जो है जानते हैं कि तीन पुस्तकें हैं जहां पर अभिलेख किया जा रहा है, जहां पर रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और उनके विषय में जो है हम बाइबल में भी देखते हैं। इसके साथ साथ बहन एलन वाइट के लिखी हुई बातों पर भी हम उनको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। The first book is the book of life. The first book is the book of life. पहला किताब जो है, पहला पुस्तक जो है, वो है जीवन का पुस्तक। पहला पुस्तक जो है वो है जीवन का पुस्तक। एंड somebody might have the question what it is. शायद किसी का सवाल होगा कि ये वाकई में क्या है। इस जीवन के पुस्तक में उन लोगों का नाम लिखा है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उसके साथ हमेशा से वफादार रहे। दिस बुक ऑफ लाइफ हैज द रिकॉर्ड ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल हु हैव एक्सेप्टेड क्राइस्ट एंड रिमेन्ड फेथफुल टू हिम। My friends, the book of life contains the name of all who have accepted Christ and remained faithful. That means if we have accepted Christ, and if we are not faithful, then may it be known to you that our names are not in the book of life. अजीजों, इस जीवन के पुस्तक में उन लोगों का नाम है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उसके साथ वफादारी के साथ बने हुए हैं। मतलब अजीजों, आप इस बात को जान लीजिए, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उसके साथ आप ईमानदारी से रिश्ते में नहीं बने हुए हैं, तो आपका नाम जो है जीवन के पुस्तक में नहीं हो सकता है। द सेकेंड बुक इज द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। जो दूसरा किताब है वो यादगार की किताब है, याद की किताब है। And somebody might be asking the question, what is it in this book? और शायद कोई पूछता है कि इस किताब में क्या है। The
This book contains the record of the good deeds, words, sacrifices and faithfulness of God's people. इस पुस्तक में हर एक व्यक्ति का अच्छे काम, अच्छे सब, जो कुर्बानी और ईमानदारी जो परमेश्वर के लोगों ने दिखाया है, उसका अभिलेख है। उन चीजों को लिखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। Friends, this book again is dedicated for God's people. Wicked people, they don't have their names in this book as well. अजीजों, ये पुस्तक भी जो है पवित्र जनों के लिए है, परमेश्वर के लोगों के लिए है। दुष्टों का नाम जो है इस पुस्तक में नहीं होगा, उनके विषय में इस पुस्तक में भी कुछ लिखा नहीं होगा। So we see here the two books, and the last book is the book of sins or book of death, we can call. और जो आखिरी और तीसरा किताब है वो है पाप की पुस्तक या मृत्यु का पुस्तक। And somebody might again ask the question what it is. और शायद और कोई पूछे कि ये किताब क्या है। In this book, you will see the record of every sinful act, word, motive of the unrepentant sinner. इस पुस्तक में आप जो है अभिलेख देखेंगे, वो हर एक पाप के कार्य का, उस पाप के शब्दों का और पाप के सोच का। My friends, the precision or the detailing with which the records have been kept by the angels, you can't even imagine. अजीजों, जिस गहराई के साथ, जिस गंभीरता के साथ आपके जीवन के चीजों को अभिलेख किया जा रहा है स्वर्गदूतों के द्वारा, आप उसको सोच भी नहीं सकते। But friends, believe me, God wants to see your name in the book of life and in the book of remembrance, not in the book of sin or book of death. अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका नाम जो है जीवन की पुस्तक में हो और यादगार की पुस्तक में हो, पर आपका नाम कभी भी जो है मृत्यु के पुस्तक में ना हो। वो कभी भी नहीं चाहते। Friends, when God saw that your names have been written in the book of death, he was willing to take death upon himself so that your name could be written in the book of life. जब परमेश्वर ने देखा कि आपके नाम मृत्यु के पुस्तक में लिखे हुए हैं, परमेश्वर ने उस मृत्यु को अपने ऊपर लेने का जिम्मा ले लिया ताकि आपका नाम उस पुस्तक से हटाकर जीवन की पुस्तक पर लिखी जाए। I want you all to think about the sacrifice that has been given so that your names could be erased from the book of death. मैं चाहता हूं कि आप सोचिए, जो कुर्बानी, जो कीमत दी गई है आपके नामों को मृत्यु की पुस्तक से हटाने के लिए। The one who died, the one suffered, the one who was mocked, he was not a common man, but he is the God, he is the creator. अजीजों, जो व्यक्ति को मारा गया, जो व्यक्ति के ऊपर हंसा गया, जिस व्यक्ति के ऊपर थूका गया, वो कोई आम इंसान नहीं थे, या कहना चाहिए वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो आप परमेश्वर थे, वो आप सृष्टिकर्ता थे, जिन्होंने जो है आपको बचाने का जिम्मा लिया। See how important you are. आप देखिए आप कितने खास हैं। See the great sacrifice that was made for your sake. देखिए आपके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई थी। Today you have to make a decision where you want your name to be written. आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि आपका नाम कहाँ लिखा हुआ है। But you know that God's desire is to see your name in the first two books. पर आप जान लीजिए कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो आपके नाम को जो है
पहले दो पुस्तकों में देखना चाहते हैं। अजीजों, यदि आपको लगता है कि आपके नाम जो है मृत्यु की पुस्तक में अब भी है, तो ये वचन का आश्वासन है कि आपके नाम उस पुस्तक से हटा दिए जाते हैं जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। My friends, it is the assurance of the scriptures that when you believe, if you think your name is in the book of death, but if you believe in the Son of God, that very moment your name will be erased from the book of death and it will be written in the book of life. Sister White says, opposite each name in the books of heaven is entered with terrible exactness every wrong word, every selfish act. बहन एलन व्हाइट कहती है कि हर एक नाम के आगे जो है बिल्कुल गहराई के साथ, गंभीरता के साथ हर एक गलत शब्द और हर एक खुदगर्ज के कामों को जो है गहराई के साथ जो है उसे लिखा गया है। फ्रेंड्स, गॉड इज देयर फॉर अस, ही इज फॉर अस, ही वांट्स टू सेव अस। अजीजों, परमेश्वर हमें बचाना चाहते, परमेश्वर हमारे लिए। लेट अस नॉट स्नैच आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम हिज हैंड्स। आइए हम अपने आप को उनके हाथों से छुड़ा ना ले, अपने आप को उनसे दूर ना कर ले। There is more, and we have to see the Bible references from the inspiration, which we will do by God's grace tomorrow. और इस विषय में बहुत और कुछ हमें देखने की जरूरत है, बाइबल अध्यायों को देखने की जरूरत है, बहन एलन व्हाइट की लिखी हुई बातों को देखने की जरूरत है, जिनको जो है हम कल करेंगे। But till we meet again, please think, please reconsider your life. हम मिलेंगे इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो है अपने जीवन को सोचिए, जीवन को देखिए कि आपका चाल, आपका जीवन कैसा है। Jesus is coming soon, and he is going to take those whose names are found in the book of life. And you know how your name could be in the book of life? That is when you believe in the Son of God. अजीजों, यीशु मसीह आने वाले हैं और वो उन्हीं को अपने साथ ले जाएंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और आप जानते हैं कि जीवन की पुस्तक में आपके नाम कैसे लिखे जाएंगे? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। If it is you who has the desire for his name to be written in the book of life, in the book of remembrance, please let us commit and please join me in prayer. यदि ये आप है और आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, यादगार की पुस्तक में लिखा जाए, और आप मन फिराव करने के लिए तैयार हैं, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम प्रार्थना करें और एक दृढ़ निश्चय ले कि हम परमेश्वर में रहें और परमेश्वर में ही बने रहें। Come, we'll make a decision because today is the day of salvation. आइए हम एक निर्णय लें क्योंकि आज का दिन है उद्धार का दिन है। आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? Father in heaven, thank you so much for your striving heart to save us. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मेहनत गहरी कर रहे हैं ताकि आप हमें बचा सकें। आप हमारे नामों को जीवन की पुस्तक में, यादगार की पुस्तक में देखना चाहते हैं। यू वांट टू सी आवर नेम्स रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ एंड इन द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। Be with us that we do not be so stubborn to erase our names from these holy books. आप हमारे साथ रहिए कि हम इतने इतने कठोर मन के ना हो जाए कि हम अपने नामों को जीवन की पुस्तक और यादगार की पुस्तक से हटाने के लिए हम जो है अपने जीवन को लगा दें। Father in heaven, help us, for we are weak, we are poor. परमेश्वर पिता, हमारी मदद कीजिए क्योंकि हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं। we are we have no strength to live the life we want to live. हमारे पास ताकत नहीं है उस जीवन को जीने के लिए जिसके लिए आप हमें पुकार रहे हैं। Father in heaven, our spirit is willing. We want to live the holy and righteous life. परमेश्वर पिता, हमारा आत्मा इच्छुक है कि हम उस पवित्र और हम उस निष्पाप जीवन को जी।
पर आवर फ्लेश इज वीक, पर हमारा शरीर जो है कमजोर है। फादर इन हेवन हेल्प अस, स्ट्रेंथन अस थ्रू योर स्पिरिट। परमेश्वर पिता हमें ताकत दीजिए, अपने आत्मा के साथ अगुवाही कीजिए। हेल्प अस वी प्रे, मदद कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम अपने जीवन को और हर एक निर्णय को आपके हाथों में सौंपते हैं। वी कमिट आवर लाइव्स एंड एवरी डिसीजन ऑफ आवर लाइव्स, मे एवरी डिसीजन बी योर विल। हमारे हर एक निर्णय आपकी इच्छा हो। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, वी प्रे दिस प्रेयर इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, आमेन, आमेन।